इलेक्शन में सर मोदी। बीजेपी। इस समय तो मोदी जा रहा है। बीजेपी जीतेगा। उसके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता, किसी के हिम्मत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी भी बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं, मतलब उनकी बातों में मुद्दे नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल देश को बीजेपी की ही जरूरत है। इस इलेक्शन में कौन जीत रहा? इस इलेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी जाएगा। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली। आप कहाँ से हैं? मैं तो बेंगलोर से। बैंगलोर से आए हैं। अच्छा अच्छा। आप क्या समझते हैं कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी। आप पिछले बार किसको दिया था? पिछली बार भी बीजेपी को दिया था। अब पूरा परिवार? बीजेपी। पहले हम लोग कांग्रेस ही थे। हाँ हाँ 2014 के बाद जो स्कैम निकला, हाँ हाँ। फिर हमने बोल दिया कि ये पार्टी अब लेकिन अभी लाएंगे। कर्नाटका में हार गए बीजेपी ना? हाँ। करेक्ट। सो वहाँ का कर्नाटका में क्या है, बीजेपी इज़ वीक। वीक। हाँ, तो हर स्टेट का अलग अलग है। तो इस इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे कर्नाटका में? बीजेपी या कांग्रेस इस इलेक्शन में? हाँ, बीजेपी को देंगे। आप बीजेपी। और आप मैडम? बीजेपी। क्योंकि ये दिस इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम वेयर द कंट्री मैटर्स। State is a different matter. Now we want a strong person in a state. But in the state you voted for who? State, I still voted for BJP, but yes, Congress made it. But I think that's how the people swing, you know. Yeah. That state, they want someone who is more powerful. And plus, the freebies still, unfortunately, in India, freebies and reservations still work. What to do? You are very observant, I must say. And what do you feel? Even I feel the same way. And in the state election? State election of She here, gave BJP only. Yes. So after 2014, we have Yeah. always been game because we felt that the other parties, they are very regional, they are very traditional, they have lost the way to bring India to the new way of doing things. They are still in caste politics. People are talking of caste consensus, which is irrational now. This past 70 years of populism for vote banking has led to this division. Other sentiments which probably what BJP might have played is saying, hey, as a Hindu you have always been suppressed. So both have played. So while BJP is not wrong, but at the same time they have taken advantage of it. So I see that way. I mean, there is a subtle difference. Now the politics, where politics comes in, now the people who are elected democratically, these are the people who are going to take decisions for us. Be it bill pass in the Lok Sabha or anywhere. Or your electricity bill? Or electricity bill, right? Now, if these people are the people who can do things, get it executed, then we cannot say it is politics. Because see, their manifesto is very clear. Similarly, manifesto of Congress is very clear. They will do caste consensus. They have wonderful manifestos. Do they ever implement them? See, at least for BJP, they have done. I'm from Jaipur. Jaipur, Yes. okay. And you come all the way here for darshan? Yes, we did. Yeah. Generally in Rajasthan, who's ahead? BJP Well, or I Congress? think in Rajasthan BJP is ahead, but I would say it would not be a clean sweep in any case. That's what people are saying. Yeah. Why is that? Well, Badmer seat is one seat which I don't think BJP will get because of, I'm sure you have heard about Ravindra Singh Bhati, a young politician who has become a social media icon. And I think few seats are strong seats of Congress. So it won't be a clean Won't sweep. be a No. all 20. And I won't be surprised even if it's 15 and 10. I won't be surprised. राजस्थान में जैसे पिछली बार देखें तो 25 की 25 सीटें जी हाँ। लोकसभा की हाँ। बीजेपी लेके गई जी हाँ। और जिसमें से और इस बार? इस बार आगे? 25 नहीं आएगी। 25 नहीं आएगी। नहीं आएगी। क्यों? काफ़ी समीकरण ऐसे बने, टिकटें जो दी गई वो ऐसे लोगों को दी गई, कहीं बहुत ज़्यादा जो बीजेपी के लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा जो वहाँ के कद्दावर नेता हैं उनका अच्छे से विरोध हुआ, और जिनको टिकटें नहीं मिली और वो निर्दलीय खड़े हुए हैं उनका प्रभाव ज़्यादा है। ये है पॉलिटिक्स। ये है पॉलिटिक्स। पिछली बार किसको दिया था वोट? मोदी इंडी गठबंधन में अपने में तो मेल नहीं है। अच्छा। अपने में मारपीट उठा पटक, ममता कुछ बोलती है, अखिलेश कुछ बोलता है जो माया तो आप मुलायम कहाँ से सिंह हैं? यादव। आप कहाँ से हैं?
हम बिहार से हैं, बिहार से। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे तेजस्वी या नीतीश कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगा। अच्छा। नीतीश में दम नहीं है, वो खाली मिला लिया गया है। अच्छा। कुछ वोट प्रतिशत उनका है, इसलिए वो मतलब 100 में 100% देगा। वो किशनगंज आपको है ना, वही विरोधी लेगा, मुसलमान का स्टेट है। अच्छा। मुसलमान का लोकसभा क्षेत्र है, तो 39 का 39 लेंगे। लालू और तेजस्वी उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो तो बैठेगा तो फिर वही चारा घोटाला करेगा और क्या करेगा। अपनाशम आदाहते नितम लक्ष्मी वश सर्वदा ब्रह्मणे नमः। अच्छा, आप पूजा में आप कलकत्ता जाते हैं? नहीं, कलकत्ता के जितने लोग आते हैं यहाँ हम करवाते हैं पूजा। और कलकत्ता आप भी जाते हैं? हाँ, हम भी जाते हैं। तो वहाँ पे आप ममता को क्या सोचते हैं? भाई जो काम करेगा लोग उसी को चुनेंगे। अब प्लस वो बंगाल की हैं तो बंगाल के ही लोग उनको बनाएंगे। तो वो जीतेंगे इस बार? देखिए, टक्कर तो मोदी का भी है, ममता का भी है, कहाँ नहीं जा सकता। लेकिन बंगाल में आगे कौन चल रहा है? इस समय तो मोदी जा रहे हैं। अच्छा, आपने अभी कहा ममता। ममता 40 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन अभी हम न्यूज़ जो देख रहे हैं टीवी पे, इस समय ममता थोड़ा सा पिछड़ गई है। अच्छा। ममता को कोई हिला नहीं सकता कलकत्ता से। अच्छा। ममता बिना वहाँ कुछ चलता नहीं है। अच्छा। लेकिन इस समय जो दौर हम 1-2 महीने से न्यूज़ देख रहे हैं, मोदी का ममता का वहाँ चल रहा है। मीडिया ही चाहे तो गिरा दे और मीडिया चाहे तो उठा दे। गिर गया। ठीक है। आप किसको वोट देंगे? आगे कौन चल रहा है इस इलेक्शन में? इलेक्शन में तो देखिए अभी तो हमारा बात है, अभी तो कैसे बता सकते हैं। बीजेपी। पिछले बार बीजेपी था, इस बार भी बीजेपी। और आप? मैं भी बीजेपी। और पिछले बार? पिछले बार भी। अगले बार? अगली बार वही। और 2029 में? उस वक्त तो देखा जाएगा। देखा जाएगा। ओके। इस इलेक्शन में कौन आगे चल रहा है? आगे सही कहा नहीं बोलेंगे हम, नहीं बोलेंगे। सही बात मत बोलो, नहीं मोदी अंदर कर देगा। सही बोलेगा, मोदी अंदर कर देगा। अभी केजरीवाल को किया, हमको भी कर देगा ना। ये बोल देना, केजरीवाल भी अंदर कर देगा हमको। हम सही बोलेगा, मोदी अंदर करेगा तब बोलिए। जवाब दीजिए मेरे बात का आप। हम सही बोलेगा, अंदर कर देगा तब। क्या है गलत? ठीक है वो कोई बात नहीं। अरे वो सब काम करना है, खाना है। जाएंगे बनाना 10 में से। हाँ मेरा जो कुछ चल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। अरे अच्छा चुप किसी की बात नहीं मानता मैं। चुप रहा, हमेशा अपने मत जो चल कर अभी मतलब का। आप क्या सोचते हैं आगे कौन चल? हम लोग क्या जाने भैया, क्या चलेगा कोई नहीं बताएगा। जाने, कोई बता नहीं मार देगा तब बंद कर देगा तो कौन देखेगा? बंद कर देगा ले जाकर अंदर तब वो दिखाएंगे नहीं। आप अरे मीडिया में दिखाओगे? चुप रहा बे मतलब। वो मीडिया दिखाएंगे प्रचार में। के पते के 100 बार बोला करा थे। नहीं भैया, मेरा दुकान मकान सब तोड़ दिए। बनाने के लिए हुआ कहे थे बना कर देंगे। गरीब लोग गरीबी हटाने को लोग गरीबी को मुआ दे रहे हैं। हम लोग का कुछ नहीं है, घर मकान सब चला गया। क्यों, क्या हुआ? तोड़ दिए। कोई वहाँ बना के देंगे, 30 लाख रुपया मांग रहे, कहाँ से 30 लाख रुपया ला के देंगे? गरीब ना 10 रुपये का डब्बा बेचते हैं, कहाँ से ला के देंगे? 200 दुकानदार हम लोग। कुछ भी नहीं हुआ, ना मुआवजा मिला, ना कुछ नवीन दुकान कुछ नहीं मिला। पहले अलग से चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ पे ब्रिटिश जमाने का था। ब्रिटिश जमाने का दुकान हुआ था, वहाँ से तोड़ के यहाँ दिए, यहाँ बना करके बोले वहाँ जाओ। अब वहाँ यहाँ तोड़ दिए, मुआवजा न कुछ मुकदमा चल रहा, वो भी बर्खास्त कर दिए। वहाँ जाओ अंडरग्राउंड में 30 लाख रुपया कहाँ से पाएंगे गरीब आदमी? सब जगह बात, सब जगह बात की हम लोग। 200 दुकानदार में से 200 दुकानदार में 2000 परिवार हो गए। ऐसे में कैसे किसी तरह घर गृहस्थी बाल बच्चे चलाए, क्या करे, कौन जीतेगा कौन हारेगा? दुकानदार सब खत्म हो गया। थोड़ा सा आवाज उठाए बंद कर दीजिए। अभी आ जाएंगे नगर निगम करने वाले, लेके भागना पड़ेगा। अगर लेके नहीं भागेंगे उठा के सामान जब्त कर लेंगे, जुर्माना अलग से कर देंगे। नहीं रोड दिए तो हैं, बना के दिए। 30 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? 32,000 रुपये स्क्वायर फीट। हाँ जी, 32,000 रुपये स्क्वायर फीट की सबसे दुकान। गरीब लोग मर जा रहे हैं बहुत। खाली दिख रहा है। हाँ तो है अंडरग्राउंड में। कोई मतलब नहीं है, हम लोग तो धंधा छोटा मोटा करता है। इस इलेक्शन में आगे कौन चल रहा है? भाजपा से। भाजपा।
आप यहाँ पे हैं, उस पे नहीं गया? क्या चीज़? आपका दुकान उसमें नहीं करेंगे? नहीं, अंदर है भी है? करना है अभी। करना है। आप यहाँ अच्छा है कि वहाँ? हम दोनों जगह अच्छा रहेंगे। यहाँ मिलेगा तो यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेगा तो यहाँ रहेंगे। इसमें जा सकेंगे? आप पैसा रहेगा तब न जाएंगे, पैसा नहीं तो कैसे जाएंगे। कितना मांग रहे हैं? बहुत पैसा है, 30 लाख 20 लाख 40 लाख 20 लाख दुकान के लिए। हाल रोजगार खत्म, परिवार भी चला नहीं पा रहे हम लोग। अभी सड़क पे लगा के हम लोग बैठे हुए हैं। अब उसमें जाने के लिए हम लोग को पैसा इकट्ठा चाहिए तब हम करेंगे। इतना पैसा हम लोग लाएंगे कहाँ से? ये हमको नहीं मालूम बाबू। हमस भी नहीं जानते। मालूम है, हमस भी नहीं जानते। ये लो सिलेक्शन में आगे कौन चल रहा है? हमें नहीं मालूम है सर, राजनीति के बारे में मालूम है लेकिन बताए नहीं। जानकारी नहीं रखते राजनीति के बारे में। हवा तो सर बीजेपी की है। आप यहाँ रहेंगे कि इसमें जाएंगे? सर उसमें नहीं तो उसमें जाएंगे। इसमें क्या कहें, रोज को कमाना खाना है ना। हाँ, ये भी बात है। और रोज के खर्चे तो मेंटेन करने हैं ना, उसको कैसे किया जाएगा? तो उसमें जाने के लिए अगर सरकार चाहेगी तो हम लोग जरूर जाएंगे, लेकिन पैसे चाहिए उसके लिए। और उतना पैसे हम लोग के पास बजट है नहीं। कितना चाहते हैं? अब जितना लोग 15-16 लाख के कलम में है। 15-16 लाख? इतना हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं। रोज कमाने खाने वाले से योगी और मोदी हमारे लिए वही सही है। पिछले बार किसको दिया था वोट? बीजेपी को दिया। आगे भी उनको ही दूंगा। क्यों उनको क्यों देने? क्योंकि वो साधक है अपने लिए नहीं, जनता के लिए सब कुछ करता है। तो जो जनता के लिए भला सोचता है तो उनका भला तो हमें भी सोचना चाहिए ना, बस इतना ही। मोदी यहाँ के हिसाब से तो मोदी जी चल रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम जम्मू से हैं। जम्मू से? अच्छा। तो यहाँ पे जस्ट विजिट करने आए थे, देखने आए थे। बट यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी हो रखी है। मतलब मैं यहाँ पे 2019 में आया था, तो उसके बाद से मैंने यहाँ देखा कि काफ़ी लॉट हैज़ बीन इम्प्रूव, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ का जो स्ट्रक्चर्स हैं, एम्यूनिटीज़ हैं, काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और जम्मू में कौन जीतेगा? जम्मू में भी बीजेपी ही। बीजेपी। और कश्मीर में? अनलाइकली है कि बीजेपी वहाँ से सीट जीते, अनलाइकली है। बट हाँ, जम्मू में जीते। जम्मू में मोस्ट प्रोबेबली। एंड लास्ट टाइम किसको दिया था आपने? बीजेपी को दिया। बीजेपी। आपने वोट ही नहीं डाला था। वोट नहीं डाला। इस इलेक्शन में आगे कौन चल रहा है? हम पत्रकार हैं। हाँ, सबसे पूछ रहे हैं इस इलेक्शन में आगे कौन चल रहा है? इलेक्शन में सर मोदी। बीजेपी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम झारखंड पलामू से झारखंड। और आप? हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर। अच्छा। तो आप कह रहे बीजेपी आगे चल? बिल्कुल सर, उसके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता, किसी के हिम्मत नहीं है। तो पिछले बार अब किसको दिया था? हमने बीजेपी को हमेशा देता हूँ। मैं जन्म से बीजेपी का हूँ। हमको चिल छाप है भूपेश सोरेन, इसको देता है चिल छाप हम लोग झारखंड से सोरेन। 10 साल में क्या है? आप कितने साल से हैं यहाँ पे? सर ये 2 साल से यहाँ है और मैं यहाँ 1 साल से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रहता था। लेकिन मैं दिल्ली में भी हमेशा बीजेपी को दिया हूँ। हर्षवर्धन जो है ना, हर्षवर्धन को, बीजेपी का जो आदमी है हर्षवर्धन, हाँ उन्हीं को दिया हूँ वोट। मैं हमेशा बीजेपी का सपोर्टर हूँ। कहीं जो आदमी काम अच्छा करता है मैं उन्हीं को वोट देता हूँ। आपका जिंदगी में क्या बदलाव आया उनकी वजह से? हाँ, महंगा बढ़ गया सर, महंगा। मोदी जो जमाना में महंगा पड़ गया है। हाँ सर, हमें ना खुशी मिला है उससे। सिर्फ खुशी मिला? खुशी मिला है। हमेशा मंदिर मस्जिद सब कुछ मिला। और हमें महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई तो हम कल अगर 30 रुपये खरीद लिए, आज 32 रुपये खरीद लेंगे, 34 रुपये खरीद लेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सड़क हमें बस ये चाहिए, हमें तरक्की चाहिए। तरक्की चाहिए। हाँ, हमें तरक्की, अगर मोदी जी दिए हैं तो हमें तरक्की चाहिए बस। हमें 2-4 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महंगाई की तरक्की हमें 2-4 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। अगर वो
30 रुपये का किलो आटा है, अगर वो 34 रुपये कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हम 4 रुपये फिर खरीद लेंगे। हमें 70 रुपये का दारू पी के यहाँ 3 बार पीते हैं, 70 रुपये का दारू पी करके 4 बार पी लेते हैं, मतलब कमा लेते हैं। हाँ आराम से। तो मैं उतना मैं कर दूंगा, लेकिन हमेशा सपोर्ट हमेशा बीजेपी का करूंगा, इतना वादा हमेशा बीजेपी का रहेगा। कितना भी महंगाई हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम 30 रुपये आटा भी खरीदते हैं, 40 रुपये भी खरीद लेंगे। जितना जेंटिंग पेंटिंग बोर्ड एक कलर का जितना सरकार बनवाया है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बनवाया, अच्छा किया। तब तो जनता नाम ले रहा है, पूरे भारत के लोग आ रहे हैं दर्शन करने, वो भी बोल रहे हैं कि बहुत मस्त काम कर रहा है। सरकार तो उसका 100% रहेगा, पूरी बहुमत के साथ आएगा, वो हिला देगा पूरा जनता को। On the ground, we are clearly see that NDA is moving actually. What are the main reasons they are moving ahead? Main reason the work they done well on infrastructure and the share market. You are seeing how it's going actually. So market and all. So we. You will vote? Yeah. We both votes actually. Will you vote? Yeah, we both. And who is ahead, you think, and why? India Alliance or NDA Alliance? NDA. You vote between NDA Yeah. mind? But you will vote with your own mind, or you will tell No, one mind. your own mind? Yeah. Independent. Yeah. See, she's saying independent. Good for you. So which side do you feel is better? Yeah. Why? Any reason? Opposition is not that much strong actually. They are not putting power and energy. Yeah, we are facing like that. They are not in the fight actually. आगे तो मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी चल जी। क्यों? मोदी जी क्यों? अरे मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, देश का भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, अब क्या चाहिए बताइए? हाँ, आप कहाँ से? यहीं से है? हम यही बनारस से ही है। अच्छा, और पिछले बार किसको वोट दिया था? नहीं, हम लोग तो बीजेपी को ही दिए थे। अच्छा, जी। पूरा परिवार? जी, सब परिवार हम लोगों का कम से कम 500 लोगों का यूनिट है, हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं और किसी को नहीं देते। और हमेशा बीजेपी? जी, बीजेपी हमेशा नहीं, काम अच्छा करे ना तो हम देते हैं बीजेपी को वोट। अच्छा। और वैसे तो हमेशा देते ही हैं वोट, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। अच्छा। जी, हम लोग हमेशा बीजेपी को वोट देते हैं। और मोदी जी को ये प्रधानमंत्री बनाना है, योगी जी को चीफ मिनिस्टर। कारण क्या? जिनके खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ इन पार्टियों का जन्म हुआ है और आज वही सब मिल के मोदी को हराना चाह रहे हैं, तो क्यों इनको चुनेंगे? आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, टीएमसी का जन्म कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, राजद का जन्म कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, जनता दल जो टूट के बिखरी थी, सबका जन्म हुआ है मोदी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। और आज सब मिल के सिर्फ मोदी को हराना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो दम है बंदे में। देखिए, यहाँ तो थोड़ा मोदी जी का ज़्यादा बीजेपी का प्रभाव है। रीज़न ये है कि थोड़ा सड़क उड़क सही हो गया है, प्रशासन भी ठीक चल रहा है, अयोध्या का असर बहुत ज़्यादा है, राम मंदिर को लेकर मोदी जी ही हैं। और आप मोदी को देंगे? किसको देंगे ये तो नहीं बता सकते ना। बिल्कुल ठीक है। पिछले बार किसको दिया था? पिछले बार तो मैंने तो सपा को दिया था। इस बार थोड़ा चेंज हो सकता है? चाहते तो है चेंज, लेकिन होगा नहीं, देखा जाएगा। क्योंकि आप मीडिया वाले ही बना दिए हवा ऐसा ना कि लगता है क्या कहा जाए। आप क्या सोचते हैं, आगे कौन चल रहा है? मोदी ही चल रहा है। पिछले बार आप किसको दिया था? ये गुजरात के गुजरात के? मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही चल रही है आगे। आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर झारखंड पर बेंगलुरु में रहता हूँ। अच्छा। कर्नाटका में आगे कौन है? कर्नाटका में भी मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार आ सकती, मतलब लोकसभा का जितना भी सीट है उसमें बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का वहाँ माहौल है और वहाँ पे जैसे अभी कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन
उनका प्रदर्शन वहाँ पे उतना अपेक्षाकृत नहीं है जितना होना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे बीजेपी को आनी चाहिए। और अभी हाल ही में उन्होंने एक नियम भी लागू किया है कि हिंदू मंदिरों पर टैक्स का जो किया है, अगर आपको टैक्स लेना ही है तो आप सभी जगह से लीजिए, केवल हिंदू टेम्पल से ही क्यों टैक्स ले रहे हैं आप। अभी फ़िलहाल देश को बीजेपी की ही ज़रूरत है। इलेक्शन में आगे कौन चल रहा है? पूरे देश में अब बस एक ही लहर है और वो मोदी लहर है। वही है, मोदी जी है। आप वोट करते हैं जो आपके हस्बैंड बताते हैं कि अपने आप? नहीं, हम लोग करीब से चीज़ों को समझते हैं और जानते समझते हैं, उसके बाद ही वो करते हैं। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार भी मोदी जी को ही दिया था, इस बार भी मोदी जी को ही दिया। नो डाउट मोदी। अच्छा, नो डाउट आप कहाँ से? वेयर आर यू फ्रॉम? आगरा, दिल्ली। आगरा, दिल्ली। ओनली मोदी जी। हाँ जी। अच्छा, वाई मोदी जी? आप इससे ना इतना विकास हो रहा है। अच्छा, सारा ही विकास ही हो रहा है, डेवलपमेंट इतना कर रहे हैं वो, तो नेचुरल सी है कि हम ऐसा है कि सिर्फ मोदी, ओनली मोदी। किसी पार्टी का कोई एक बंदा आप मुझे खड़ा करके बताओ कि ये देश का भविष्य आगे उज्जवल कर सकता है। इलेक्शन में आगे कौन चल रहा है? हम मोदी चल रहे हैं हर जगह, बनारस में, यहाँ अयोध्या में, हर जगह चल रहे हैं। इधर का तो नो आइडिया, हम लोग तो बॉम्बे से है। बॉम्बे में आगे कौन चल रहा है? मोदी चल रहे हैं। बीजेपी। हम मुंबई से। मुंबई से वहाँ से आए यहाँ? यस। अच्छा, मुंबई में भी मोदी आगे है? हाँ। मोदी आगे, सब जगह आगे। मोदी है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है सर, बहुत बड़ा काम करके रखा है उन्होंने अपने देशवासियों के लिए, और आगे भी उनको बहुत कुछ करना है, इसके लिए मोदी आगे। No one will be poor in India. हाँ जी? No one will be poor in India. In India. थैंक यू सो मच। मोदी से चल रहे हैं भाजपा। आप भी बताइए। मोदी जी चल रहे हैं। I don't know. योगी जी। योगी जी, आप कहाँ से हैं? दिल्ली फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली एंड योगी। अच्छा, अयोध्या। आगे कौन चल रहा है यहाँ पे? मोदी। इलेक्शन में आगे तो भाजपा ही चल रही है, लेकिन मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ। हाँ, लेकिन राहुल गांधी भी बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, उनकी बातों में मुद्दे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मोदी की बातों में भटकाव और मतलब उस तरीके की बातें जो निरर्थक हैं वो समझ में आ रही है। लेकिन जो चुनाव का माहौल है कि लोग जिताना किसको चाहते हैं, तो भाजपा को ही है। उस अब सो कॉल्ड जो भी रीज़न हो उसका, आगे पीछे किसको बताएं, आगे चल रहा है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा आगे कौन है पीछे कौन है। नहीं, इलेक्शन के बाद हम पूछेंगे नहीं। आगे तो सुनने में भाजपा ही आ रही है सर। क्यों आगे क्यों जा रहे हैं? आपने बहुत मुझे इसलिए लग रहा है वो आगे जा रहे हैं क्योंकि वो जनता को मूर्ख अच्छे तरीके से बना लेते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी अपना काम बहुत बायस तरीके से कर रही है। जब से वो अमित शाह श्री राम जी की फ़ोटो दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं ले सकते हो। इलेक्शन कमीशन भी अपने मेमोरेंडम में दिया हुआ है कि धर्म जात के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हो, आपको आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। स्टिल वो कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को कुछ भी नहीं बोल दिया है। और लास्ट इलेक्शन में 2019 में मोदी जी का जिसने चेक करा था, इलेक्शन कमीशन के बंदे ने उनकी हेलीकॉप्टर शायद चेक कर लिया था, उसको उन्होंने नौकरी से हटा दिया गया था उस लड़के को। तो वही सब मैं देख रहा हूँ कि मतलब बायस्ड है, प्रेजुडाइज है इलेक्शन। ओपिनियन वाइज भी बायस प्रेजुडाइज है क्योंकि इंसान चीज़ों को अच्छे तरीके से समझता नहीं है हमारे देश का, और जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी बहुत ही बायस तरीके से काम कर रहे हैं। दे हैव लॉस्ट देयर स्पाइन। थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, पर देखते हैं वो कितना कर पाएंगे। आगे तो हमारे भगवान श्री राम है। वो तो है हमेशा, लेकिन पॉलिटिक्स में इस इलेक्शन में कौन है? इस समय तो योगी मोदी चल रहे हैं इस समय। बीजेपी का। हाँ, बीजेपी सब जाएगा, मोदी जाएगा, फिर बीजेपी जाएगा। बीजेपी जाएगा, मोदी जाएगा। बीजेपी है, मोदी हट जाएगा। बीजेपी। सर एक ही नाम है, जय श्री राम जय श्री राम। और क्या कर सकते हैं बताओ यहाँ सर? यहाँ तो राम में है सर, अब नाम लेना जरूरी है तो बता दो, नाम भी ले लेंगे। नाम ले लीजिए। नाम है मोदी जी हमारे। अभी कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है क्यों? बिल्कुल, नहीं? क्योंकि लगभग अंदाज है क्या? अंदाज देखा ये तो अभी जो है लगभग पूरे भारत में बीजेपी का ही, हाँ, ये अभी आगे चल रहा है।
उसका उनका जो क्रेज है बीजेपी का मोदी सरकार को लेकर, मोदी जी को लेकर के, बीजेपी आगे क्यों है? रीजन है सबसे बड़ी है उनका जो मुद्दा है, आई थिंक जो मुझे लगता है वह हिंदुज़म का हिंदुत्व को लेकर के सबसे आगे वो काम किए, सबसे बेहतर काम किए। योगी है। योगी मोदी और कौन? और वो को आगे क्यों आया? भाई ये स्वाभाविक सी बात है, आगे इस वजह से है क्योंकि कार्य इतने अच्छे कर रहे हैं वो। अच्छा काम करेगा वही आगे जाएगा। कहाँ अयोध्या था और कहाँ आ गया अयोध्या आज, इस वजह से तो आप वोट देंगे? हम तो हमारी एज नहीं है, मगर हमारी फैमिली वाले तो पक्का देंगे। मेरी हो गई इस बार, मैं बिल्कुल दूंगा। दे दिया। अच्छा, अभी तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आगे कौन है? बीजेपी। बीजेपी आगे। आप क्या समझते हैं? बीजेपी। आप क्या समझते हैं? बीजेपी। बीजेपी क्यों? योगी और मोदी।